हो गया. Okay, so today we will do some questions of objective type questions of the force and motions and what Newton's law of motion, acceleration, velocity, and such type of things and frictions, whatever involved in this question. We will do such type of numerical, okay, which is useful for what GP rating courses, DNS courses, and for various type of the exam. So, what is the unit of force in the international system of unit? That is, what is SI unit of force? What is SI unit of force? So that is what? Newton. Newton is what? SI unit of force. Okay? Now, what is Newton's second law of motion? What is Newton's second law of motion? That is the for the first question, option provided. First, Newton. Second, Newton per meter square. Third, meter per second square. Fourth, none of the above. Okay. So, what is the SI unit of force? That is what? Newton. Newton will be the correct answer. Come towards the next question. What is the Newton's second law of motion? What is Newton's second law of motion? Here it is talking about the second law of motion. So, that is what? Force equals mass time acceleration. This is force is equal to mass into acceleration. For every action there is an equal and opposite. तो ये अदला बदली का काम सबसे लास्ट में किया जाता है. तो दैट इज व्हाट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन. दिस इज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. And force equal mass times acceleration. So this gives the formula. The main thesis is what? The acceleration of an object depends on its mass and the net force acting on it. Okay. So this is the better statement which what define Newton's second law of motion. Come towards the next question. A car accelerates from rest at rate of 2 meter per second square. Okay. How far does it travel in 5 seconds? So here it is given a is equal to 2 meter per second square, t is equal to 5 second, okay, and the initial velocity when it started from rest. तो हम लोग जानते हैं कि जब भी a स्टॉप होने के बाद चलना चालू करेगा तो स्टार्टिंग में रुका हुआ है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो अब अप्लाई कीजिए कि ये कितना दूर जाएगा. तो इसमें हम अप्लाई करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट? 25. 2 to 2 cancel out. u into t that become 0. So this is what? 25 मीटर. तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा आपका? दैट इज ऑप्शन ए 25 मीटर. क्लियर है? थोड़ा बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहा होगा, पता है अच्छे से. ये थोड़ा सा आजकल कोहरा ज्यादा बढ़ गया है तो कमरे में लाइट नहीं पूछ रहा है. ठीक है. तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं कि क्या करना है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. सो दैट इज Which of the following scenario demonstrate Newton's third law? अभी तुरंत बताया थर्ड लॉ क्या होता है. बदला लेने का भावना ही थर्ड लॉ होता है. ठीक है. तो देखिए, a person pushing against a wall experience resistance from the wall. A ball rolling down a hill accelerate due to gravity. थर्ड लॉ में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा. A rock thrown into a lake creates ripple. नहीं. A car moving forward due to the engine power. नहीं. A car moving forward due to the engine power. A person pushing against a wall experience resistance from the wall. देखिए रेसिस्टेंस का केस तो नहीं होगा लेकिन कार मूविंग पर होगा, क्योंकि ये देखिए मोटर क्या करता है. मोटर बेसिकली
पीछे की ओर, कार इंजन का जो मोटर रहता है वो पीछे की ओर पावर लगाता है, पीछे की ओर पावर लगाएगा तो इसी न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन किया तो इसके कारण क्या हुआ, कार आपका मूव कर गया। क्लियर है? तो बहुत टैक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे एप्लीकेशन को अच्छे से समझने पड़ेगा तभी आप इसे कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इवेल्युएट्स द इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन का दुश्मन, मतलब मोशन को रोकने वाला, दैट इज अ फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन ऑलवेज स्टॉप मोशन इंटायरली मतलब पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन बट कैन ऑल्सो हेल्प इट मूव बाय प्रोवाइडिंग ग्रिप। सबसे बेटर ऑप्शन मुझे अभी तक ये लगा है, बाकी मैं पढ़ता हूं। फ्रिक्शन इंक्रीजेज द स्पीड, नहीं, फ्रिक्शन रोकने का काम करता है और चलने में मदद करता है, यही हम चीज जानते हैं। फ्रिक्शन हैज नो इफेक्ट रहता तो पढ़ते क्यों इसे मोशन के चैप्टर में। ठीक है, तो फ्रिक्शन कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन बट कैन ऑल्सो हेल्प इट मूव by providing gripping. So option B will be what? Correct answer. Now come towards the next question. Design an experiment to measure the acceleration of a toy car on a slope. ये रहा बेटा आपका स्लोप। ढलान को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ढलान को कहते हैं स्लोप। तो ये रास्ता ऐसे जा रहा है, यहाँ पे स्लोप प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर एक टॉय कार है, ये नीचे की ओर जा रहा है बेटा। ठीक है, ऑन अ स्लोप विच फैक्टर विल यू वैरी। तो किसी स्लोप पर जाएगा तो ये वाली चीज, स्लोप हमेशा रोड एक ही बार में डिजाइन किया जाता है, डेली नहीं बनता है। तो थीटा तो आपका कांस्टेंट रहेगा बेटा, तो थीटा को ही कहते हैं एंगल ऑफ स्लोप, इसी थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, तो एंगल ऑफ स्लोप वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, रोड एक ही बार बनेगा। तो द विच ऑफ फ्लोइंग फैक्टर विल यू वैरी, वेरिएबल खुद रहा है तो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगला देखते हैं द वेट ऑफ द कार। वेट ऑफ द कार कल ही बताया था कि जमीन पे चलेगा तो वेट उसका हमेशा एक जैसा रहेगा, तो दैट इज बी, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। द सरफेस ऑफ द स्लोप, अब ऐसा थोड़े है भाई कार जा रहा है तो मोदी जी थोड़े बार आ रहे हैं कि फूल बिछा दिया जाएगा, तो हर आदमी के लिए रोड वही रहता है, तो ये भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्लोप कांस्टेंट रहता है, और सरफेस ऑफ द स्लोप आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द स्लोप जब इंक्रीज कर सकता है तो एक और इसका हम प्रोविजन देख लेते हैं। ठीक है, एक और प्रोविजन देखिए क्या कह रहा है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्सीलरेशन ऑफ अ टॉय कार ऑन अ स्लोप। तो विच फैक्टर विल यू वैरी, आप किसे वैरी करवाओगे जब एक्सीलरेशन आपका बढ़ाना हो। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? दैट इज अ v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं किसको बढ़ा दूंगा? यहाँ पर थीटा को बढ़ा दूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एंगल ऑफ द स्लोप बढ़ाइएगा। स्लोप मान लिया जाए बेटा आपका, ये अभी ये लग रहा है इधर की ओर, अगर थीटा ए दे रहा है तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ए साइन थीटा हो जाएगा सर, और ये वाली वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा सर। अगर थीटा की वैल्यू मैं रखता हूं 30 डिग्री तब ऐसा रहा, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए बेटा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू ए कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 बदल जाएगा ना, तो थीटा हमेशा चेंज होता है तो एक्सीलरेशन चेंज होता है। तो द एंगल ऑफ द स्लोप शुड बी व्हाट? वैरी करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। तो अभी एक कल ही बताया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करके रखता है बॉडी को। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the net external force acting on its is zero। net external force acting on its is zero। तो ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे दो लोग मिलके खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है,
ए भी 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है बेटा और ए भी 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगा, एफ नेट कितना लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो एफ नेट आपका कितना लगा बेटा 0 न्यूटन का लगा। तो जब दोनों पर एफ नेट 0 का तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बेटा 0 होगा। तो क्या कहता है, इट विल एक्सीलरेट इंडेफिनिटली, नहीं, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू इन इट्स करेंट स्टेट ऑफ मोशन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, हाउ हाई डज इट गो बिफोर इट स्टॉप। ओके, तो ये तो कल ही बताया था। एच कैसे निकालते हैं, तो सर एच इजकल टू लेते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ऊपर की ओर बॉल जा रहा है सर, तो ऊपर की ओर जब बॉल जाएगा तो जहां पे प्लस यूज किए है बेटा वहां पे माइनस यूज कर दीजिएगा, तो माइनस हाफ, ए के जगह क्या लग गया, जी लग गया, टी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर की ओर बॉल जा रहा है तो ये कितना हो गया आपका u इंटू टी, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाली फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, टाइम दिया हुआ नहीं है। तो टाइम दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा बेटा, जब बॉल ऊपर जहां पर जाएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अप्लाई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब v के जगह पर 0, u के जगह पर 20, तो 20 का स्क्वायर। अब देखो बेटा g के बॉल किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जब जाता है तो हम क्या लेते हैं, g को -9.8 लेते हैं, तो 2 गुना -9.8 गुना क्या हो गया आपका h हो गया है। ठीक है, अबे -400 दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 9.8h, नो माइनस टू माइनस कैंसिल, 2 2 जा 200, मेरे ख्याल से 20 मीटर के समथिंग में आना चाहिए। तो h बिकम वाट 20 अपॉन 9.8, 200 अपॉन 90, तो दैट विल बी इक्वल टू वाट 200। तो 10 ऊपर गुना किया, 10 नीचे गुना किया 2, तो दैट विल इक्वल टू 20 पॉइंट समथिंग के इक्वल में आएगा। तो दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर 20.4। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। अगर बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर है, इतनी बातों को याद रखिए, बैलेंस के साथ यूनिफॉर्म रहते हैं और अनबैलेंस के साथ नॉन यूनिफॉर्म वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स कॉज मोशन वाइल अनबैलेंस्ड फोर्स डू नॉट, ऐसा कहीं पर बात नहीं है, जब मोशन में ही है तो क्या करोगे आप। नेक्स्ट है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रहा है, बोथ ऑफ ऑल विल लीड टू एक्सीलरेशन, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट व्हाट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट while balanced force can't change the velocity of an object. Okay, now come towards the next question. Evaluate the relationship between mass and acceleration based on Newton's second law. Okay, which conclusion is correct? मास एंड एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आया है। ठीक है, तो ग्रेटर मास लीड्स टू ग्रेटर एक्सीलरेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, ऐसा कुछ तो यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। अगर मैं देखूं तो एक्सीलरेशन के रिगार्ड में देखूं तो एफ बाई एम इक्वल टू एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, इधर का नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा अंधेरा में है। तो ये बिकम व्हाट एफ बाई एम, तो अगर इसको मैं न्यूटन के अनुसार चलूं तो A is directly proportional to the applied force and A is inversely proportional to the mass of the object। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो एक्सीलरेट बड़ा जल्दी करेगा, इसीलिए
बड़े पत्थर को फेंकोगे तो स्पीड में नहीं जाएगा और छोटे पत्थर को फेंको तो स्पीड में चला जाएगा। तो ए इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। नाउ कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन हियर, ग्रेटर मास लेड टू ग्रेटर एक्सीलरेशन। जब ऐसा हो बेटा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी तो एम की वैल्यू घटनी चाहिए, ठीक है, तो उल्टा लिखना चाहिए, ग्रेटर मास लेस टू लेस एक्सीलरेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, दैट इज अ करेक्ट आंसर। मास एंड एक्सीलरेशन ऐसा कुछ बात नहीं है, ओनली मास अफेक्ट्स एक्सीलरेशन नोट द फोर्स अप्लाइड। ये तो बाबा पूरा का पूरा गलत बोल दिया है। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेशनशिप, greater mass leads to less acceleration for a constant force. Now come towards the next question. Design a scenario where friction aids in motion. aids नहीं add लिखना चाहिए था बेटा, लेकिन कोई नहीं। What would the scenario involve? तो डिजाइन सिनेरियो वेयर फ्रिक्शन एड्स इन मोशन, फ्रिक्शन जुड़ता है मोशन में। तो यहाँ पर देख लो ना, कार में गिट्टी टाइप का रहता है, चलने में मदद करता है, जूते में फिर दिया जाता है, ग्रिप बनाया जाता है, चलने में मदद करता है। तो ग्रिप व्हाट दैट क्रिएट रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन। ओके, सो अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, अ पर्सन स्लीपिंग ऑन अ आइस, अ स्केट मोटर पुशिंग ऑल ऑफ द एवब हो जाना चाहिए, बॉल रोलिंग डाउन अ हिल। तो डिजाइन अ सिनेरियो वेयर फ्रिक्शन एड्स इन मोशन, तो इसका तो देखो बेटा, अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे तो होना चाहिए। पर्सन ये अगर एड्स इन मोशन करता तो पर्सन स्लीपिंग ऑन आइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्केट मोटर पुशिंग ऑफ द ग्राउंड नहीं, और रोलिंग डाउन अ हिल। तो अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज गिर रहा है बेटा तो हवा क्या करता है, ऊपर की ओर हवा ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, तो जिसके कारण यहाँ पर रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एयर रेसिस्टेंस कहते हैं। एक अब रेसिस्टेंस है तो भाई रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है रोकने वाले लोग, तो ये मोशन को क्या करेगा, रोकेगा। तो प्रोवाइड friction to the motion of the falling body, तो it decreases the object speed, it increases the weight से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया, तो इसको खत्म करो। इट हैड नो इफेक्ट, नो रहता तब तो बात ही नहीं था। इट कॉजेड गेन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहाँ चला गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट व्हाट इट डिक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स स्पीड। ये क्या कर देगा, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, why do object in motion tend to stay in motion according to Newton first law? So due to inertia of the body. Now come towards the next question. A cyclist applies brake to slow down from 20 मीटर, तो ये क्या हो गया बेटा आपका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप इन 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड बेटा, एंड स्टॉप हुआ तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, सो a इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट v माइनस u अपॉन t। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, अब ए जो एक्सीलरेशन निगेटिव में आएगा, डरना नहीं है, एक्सीलरेशन जब निगेटिव में आए तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा से कम होगा। तो a इक्वल टू व्हाट, v दैट 0 माइनस u 20 अपॉन t 5 माइनस 4, तो दैट बिकम व्हाट, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको माइनस 4 मीटर पर सेकेंड और प्लस 4 मीटर दोनों दिया हुआ है, तो जब माइनस में आता है एक्सीलरेशन तो इसको नाम हो जाता है बेटा आपका रिटार्डेशन। क्या नाम हो जाता है, रिटार्डेशन। ओके ना, तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज का ज्ञान बस इतना ही है, बने रहिए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।